ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله العظيم۔ میرے محترم اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مولانا مکارمی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ بیان کیے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے۔ یورپ کے ویلفیئر سوسائٹی انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک اجلاس منعقد کیا اور انہوں نے اس اجلاس میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ مذہب کے نام پر ہے، جتنی بھی فسادات ہیں وہ مذہب کے نام پر ہے، جتنے جھگڑے ہیں وہ مذہب کے نام پر ہے۔ تو پھر کیوں نہ تمام مذہب کے ماننے والے لوگ ایک مذہب پر آ جائے تاکہ یہ لڑائی ختم ہو، یہ جھگڑے ختم ہو، یہ فسادات ختم ہو۔ انہوں نے یہ سوچنے کے بعد تین دانشوروں کو بلا لیا، ایک یہودی دانشور ہے اور ایک عیسائی دانشور ہے اور ایک مسلمان دانشور ہے۔ بھائی مذہب تو اور بھی ہے، مذہب کے ماننے والے اور بھی لوگ ہیں اور بہت سارے دنیا میں مذاہب ہیں، آپ نے صرف ان تینوں حضرات کو کیوں بلائے گے؟ ویسے ہندو مذہب ہے کہ قربت مذہب ہے، سکھ مذہب ہے اور نہ جانے دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، لیکن آپ نے صرف ان تینوں حضرات کو بلائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بتایا کہ ان تینوں حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ تینوں حضرات آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر لیں اور ایک مذہب پر آ جائیں تاکہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، یہ جھگڑے ختم ہو جائے، یہ فساد ختم ہو جائے۔ اور اس مجلس کے دو حضرات جج اور مرسی بن گئے۔ اس جج اور مرسی حضرات نے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ان تینوں دانشوروں سے، انہوں نے کہا بھائی مذہب تو وہ ہوگا کہ جو کسی نبی سے منسوب ہو، مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، جو کسی نبی سے منسلک ہو، جو کسی نبی سے وابستہ ہو۔ تو آپ حضرات بتائیے کہ آپ کا مذہب کس نبی
हजरात में से यहूदी दानिशवर ने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, वो अल्लाह के नबी हैं। ईसाई दानिशवर ने कहा हमारा मजहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, वो अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान दानिशवर ने कहा हमारा मजहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, वो अल्लाह के नबी हैं। यह बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से वाबस्ता है। यह बात तो तय हो गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल करते हुए जज हजरात बड़े ही दिलचस्प सवाल करते हैं। कहते हैं भाई ये दौर किस नबी का दौर है, ये दौर किस नबी का दौर है, ये जमाना किस नबी का जमाना है, ये वक्त किस नबी का वक्त है। यहूदी दानिशवर ने कहा हमारे नबी का दौर है, ईसाई दानिशवर ने कहा हमारे नबी का दौर है, मुसलमान दानिशवर ने कहा हमारे नबी का दौर है। जज हजरात कहते हैं यूं नहीं, बात होगी दलील से, और दलील के तौर पर आप हजरात को यह बताना होगा अल्लाह नबी को मौजिजा देता है। अगर नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजिजा भी गुजर गया तो उस नबी का दौर गुजर गया। अगर मौजिजा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। तो आप हजरात बताइए, मिसाल के तौर पर अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा यानी असा आपको मिल भी जाए, आप उसे लेकर कोई मौजिजा नहीं दिखा सकते, वो उतना मखसूस थी। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मिल भी जाए, आप उसे पहन करके दरिंदों से, परिंदों से, चौपाओं से बातें नहीं कर सकते, ये उतना मखसूस थी। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त मिल भी जाए, आप उस पर बैठ करके हवा के दोष में नहीं जा सकते, वो उतना मखसूस थी। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजिजा भी गुजर गया तो उस नबी का दौर गुजर गया। अगर मौजिजा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। तो आप हजरात बताइए, तो पहले दोनों दानिशवर खामोश है, यहूदी दानिशवर खामोश है, ईसाई दानिशवर खामोश है। जब मुसलमान की बारी आई, मुसलमान सीना चौड़ा करके कुरान को हाथों में उठा करके कहता है ये मेरे आका का वो मौजिजा है जो कल भी मौजिजा था और आज भी मौजिजा है। कुरान मेरे आका का वो मौजिजा है जो कल भी मौजिजा था और आज भी मौजिजा है। कल भी मौजिजा था, आज भी मौजिजा है। कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इसकी लाखों हाफिज थे, आज भी इसकी करोड़ों हाफिज है। कल भी इसके हजारों आलिम थे, आज भी इसकी लाखों आलिम है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है और आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। कल भी जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका और आज भी जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका। कुरान मेरे आका का वो मौजूदा है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की गवाहियां दे रही है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की दुहाइयां दे रही है। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, कुरान के पारों में तेरे नाम की चर्चा है। चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है, ये वक्त मेरे आका का वक्त है। अब जज हजरात अब अगला सवाल करते हैं, तीसरा सवाल कि भाई तुम सभी हजरात जो चाहते हो कि हमारा मजहब फैले फैले और पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरी धरती पर फैल जाए, तो ये बताइए क्या आप में से किसी के नबी का ये दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? अगर है तो ठीक है, फैलाओ। और अगर नहीं है दावा आप में से किसी के नबी का कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, फिर तुम्हें क्या पहुंचना है कि तुम पूरी दुनिया में फैलाओ। दोनों
मुसलमान की बात आई, मुसलमान कहते कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। इसीलिए पहाड़ की चोटी पर जो हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के जो सबसे पहले ऐलान किए थे, वो कौम को मुखातिब नहीं किए, वो सिर्फ मक्का वालों को मुखातिब नहीं किए थे, वो हिजाज वालों को मुखातिब नहीं किए, वो अरब वालों को मुखातिब नहीं किए थे, वो सिर्फ हिजाज वालों को मुखातिब नहीं किए थे, बल्कि सारे आलम के दुनिया के लोगों के बारे में लोगों की जान मुखातिब होकर के कहते हैं कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ इंसानियत से ताल्लुक रखने वालों, ऐ खुद के इंसान कहलाने वालों, ऐ खुद के मुसलमान इंसान कहलाने वालों, सुनो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का नुमाइंदा, मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। पढ़ लो, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। ये इस बात